نام ہے جو ہر ایک کی زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور ایک ایسا نام ہے جو ہر ایک کے لیے لعنتی بنا تاکہ میرے اور آپ کی زندگی پہ لعنت نہ رہے۔ مگر میں اور آپ کس طرح زندگی جیتے ہیں، میں اور آپ کس طرح زندگی جینا چاہتے ہیں، میں اور آپ کس طرح اپنی زندگی کو رکھنا چاہتے ہیں، یا میں اور آپ کس طرح اپنی زندگی کو سوچتے ہیں۔ زندگی ایک خدا کی دی ہوئی نعمت، برکت اور خدا کی بخشش ہے، کیونکہ ہر کامل انعام اور ہر اچھی بخشش اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ہے، اور وہ نوروں کا باپ مجھے اور آپ کو نور بنا کے زندگی دیتا ہے۔ وہ نوروں کا باپ میرے اور آپ کی زندگی کے اندر نور دیتا ہے، تو میرے اور آپ کی زندگی میں نور آتا ہے، تو میں اور آپ زندگی پاتے ہیں، تو میں اور آپ تازگی پاتے ہیں، تو میں اور آپ زندگی کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہیں۔ مگر وہ زندگی کے بیٹے اور بیٹیاں کس طرح رہ سکتے ہیں، کس طرح ہم اس یسوع کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، کس طرح ہم یسوع کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اور وہ کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو، جو میرے اور آپ کے گھرانے کو، جو میرے اور آپ کے بچوں کو، جو میرے اور آپ کی قوم کو، جو میرے اور آپ کی آنے والی نسلوں کو خدا سے دور کرتی ہے، خدا کے فضل سے، خدا کی محبت سے، خدا کی شفقت سے، یہاں تک کہ خدا سے چھپنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ وہ کچھ نہیں سے میرا اور آپ کا گناہ ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں خدا کی آنکھ میرے اور آپ سے دور ہونے لگ جاتی ہے، کیونکہ خدا گنہگار کو پیار کرتا ہے مگر گناہ سے کبھی بھی پیار نہیں کرتا۔ جب پہلی دفعہ آدم میں گناہ ہوا تو خدا ان سے دور ہو گیا، کیونکہ وہ ننگے ہو گئے۔ کوئی چیز مجھے اور آپ کو خدا کے سامنے ننگا نہیں کرتی، کوئی چیز مجھے اور آپ کو خدا کے سامنے ننگا نہیں کر سکتی، نہ حالات، نہ مشکلات، نہ دکھ، نہ تکلیف، نہ بدحالی، نہ بیماری، نہ کوئی اور چیز، مگر ایک ایسی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو خدا کے سامنے ننگا کر دیتی ہے، اور میں اور آپ اس طرح ہو جاتے ہیں کہ میں اور آپ تھکے نہیں رہتے، تاریکی میں جینے لگ جاتے ہیں، تاریکی میں چلے جاتے ہیں، اور تاریکی میرے اور آپ کے اوپر حکومت کرنے لگ جاتی ہے۔ مگر میں اور آپ نہ تاریکی کے تھے، نہ تاریکی کے ہیں، نہ کبھی تاریکی کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ تاریکی ابلیس کے لیے تھی، ابلیس کے لیے ہے اور ابلیس کے لیے رہے گی۔ میں اور آپ اس خدا کے فرزند ہیں جس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس نور ہے، جو اپنے منہ سے کہتا دنیا تخلیق کرتا، مگر جب اس نے مجھے اور آپ کو بنایا اس خدا کو مشقت کرنی پڑی، اس خدا کو محنت کرنی پڑی، اس خدا کو اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنا پڑا، اس خدا کو اپنے آپ کو کام کرنے پہ مجبور کرنا پڑا۔ سوچیں، نسل انسانیت اس کائنات میں چھوٹی سی جیتی جان، ایک چھوٹی انسان 7 فٹ 8 فٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا اس ٹائم، اس 8 فٹ کی جو میں اور آپ ہیں، ان کو بنانے کے لیے اس کو اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا پڑا۔ مجھے اور آپ کو تخلیق کرنے کے لیے اس نے اپنے منہ کا صرف الفاظ کا استعمال نہیں کیا، دنیا کی ہر چیز جو کائنات پہ ہم جس پہ کھڑے ہیں، جس کائنات پہ ہم پیر رکھے ہوئے ہیں، یہ خدا کے منہ کے الفاظ سے بنی، خدا کے منہ سے بنی، مگر جو میں اور آپ ہیں ہم اس کے ہاتھ کی کاریگری ہیں، میں اور آپ اس کے ہم شبیہ ہیں، میں اور آپ اس کی مانند ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس نے اپنی طرح بنایا، کیونکہ موت میرے اور آپ میں نہ تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے، مگر جب انسان گناہ کرتا ہے موت کے دروازے کو خود کھٹکھٹاتا ہے، موت کو کہتا ہے آ مجھ پہ حکمرانی کر۔ میں اور آپ کہاں جینا چاہتے ہیں، میں اور آپ کس طرح جینا چاہتے ہیں، یا میں اور آپ کس کے ساتھ جینا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے میری بھیڑیں میری آواز کو پہچانتی ہیں، جانتی ہیں۔ کیا میں اور آپ اس کی بھیڑیں ہیں، یا میں اور آپ کسی دنیا والے کی بھیڑ ہیں؟ جب بھی دنیا کا ذکر ہے ابلیس کا ذکر ہے، کیونکہ بائبل اس کو جہان کا خدا کہتی ہے۔ وہ جہان کا خدا ضرور ہے، مگر جو میرا اور آپ کا خدا ہے وہ جہانوں کا بنانے والا ہے۔ وہ دنیا میں بستا ہے، مگر جو میرے اور آپ کے اندر بستا ہے وہ اس سے زیادہ زوراور ہے جو کہ اس دنیا میں بستا ہے۔ ابلیس کی کوئی طاقت، ابلیس کی کوئی قوت میرا اور آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر تب بہت سے کرسچن یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع کے نام میں معجزہ ہے،
بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع کا نام لینے سے بدو آپ سے بھاگ جائے گی. بہت سے کرسچن یہ سمجھتے ہیں کیونکہ بائبل میرے ہاتھ میں ہے اب اس میرے سامنے نہیں آ سکتا. سب میرے اور آپ کی دماغ کی سوچ ہے. وہ جو خود کلام تھا اس کے سامنے ابلیس تھا. وہ جو خود کلام مجسم ہوا اور میرے اور آپ کے بیچ میں رہا اس کے سامنے ابلیس تھا. اس سے ابلیس بات کرتا تھا, اس سے ابلیس آزمائش میں ڈالتا تھا, اس سے ابلیس پوچھتا تھا. آج مجھ سے آپ سے پوچھتا ہے, آج میرا اور آپ سے بات کرتا ہے, مگر میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ صرف یسوع کا نام لینے سے کچھ ہونے لگ جاتا ہے. بالکل, مگر ان کے ساتھ جس کے فرما بردار ہے. وہ نہیں کہ جو دنیا میں جیتے ہیں اور جب بات آئے کہ یسوع کا نام لے لیتے ہیں. یسوع کا نام ابلیس بہت اچھی طرح جانتا ہے. صرف یہودی کے دو بیٹے تھے, وہ بدروے نکالتے تھے. ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے ایک دن ایسا آیا بدرو نکالنے گئے. جب بدرو نکالنے کے لیے گئے تو بڑا اس کو بھی میں جانتا ہوں, اس کو بھی جانتا ہوں. تم کون, تم کون؟ ابلیس مجھے اور آپ کو جانتا ہے, مگر کس طرح جانتا ہے؟ اس کی حالت کیا ہوئی؟ اس کے کپڑے پھاڑے اور اس کے ساتھ بہت سے اسکالرس کا کہنا ہے کہ جسمانی زیادتی تک گزرنے کی تو ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا. یسوع نام سب ناموں سے اوپر ہے, مگر نام لے کون رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کس زبان سے دیا جا رہا ہے, وہ کس لفظ سے نکل رہا ہے, وہ انسان خود کیا ہے, وہ انسان خود کس طرح جیتا ہے, وہ انسان خود کس طرح جینا چاہتا ہے, یا وہ کس طرح کی زندگی جی رہا ہے. کیسا ہو سکتا ہے کہ ساؤل جادوگری کے پاس بھی جاتا تھا اور بعد میں آ کے یہوہ کے نام سے جولیٹ کا مقابلہ بھی کر سکے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ گناہ کرتے ہیں آپ خدا کے سامنے ننگے ہو جاتے ہیں. جب میں اور آپ گناہ کی طرف چلتے ہیں میں اور آپ خدا سے دور ہو جاتے ہیں. خدا نسل انسانیت کو کبھی نہیں چھوڑتا, مگر وہ انصاف کا خدا ہے, وہ انصاف ضرور کرتا ہے. Samson was the most powerful person physically to be born on this earth. Most powerful personality ever to be born on this earth. اور وہ جب پیدا ہوا تھا اس کی ماں بانج تھی, اس کو فرشتہ ملنے آیا, اس کو کلام دیا اور فرشتے نے اس سے بات کی. اس کی اتنی ڈیڈیکیشن تھی کہ ان کو کنفرمیشن کے لیے فرشتے کو دوبارہ آنا پڑا اور وہ فرشتہ آگ میں سے اوپر اٹھایا گیا تھا. مطلب ایک وعدہ کر کے گیا اس سے اس بچے کے سر پہ کبھی بھی اس طرح نہیں پھیرے گا. اس کی طاقت تھی, اس کی طاقت ان بالوں میں نہیں تھی, اس کی طاقت ظاہر وفاداری میں تھی. آج میں اور آپ بہت سے لوگ اس منزل پہ آ کے عہد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ عہد ایک چھوٹی سی بات ہے جو آپ دنیا میں بھی کر دیتے ہیں, جو بہن بھائی کر دیتے ہیں, جو ماں بے باپ کر دیتے ہیں, یا بیٹا اپنے ماں باپ سے کر لیتا ہے, یا کوئی بھی دنیا میں بسنے والے ایک دوسرے کو پیار کرنے والے ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں. میرے بہنوں اور بھائیوں, خدا کا عہد, خدا کے وعدے کچھ اور ہے. میں اور آپ ایک عہد کے نیچے رہ رہے ہیں. میرا اور آپ کا عہد کسی جانور کے خون کے ساتھ نہیں ہے. میرا اور آپ کا عہد برتن کے خون کے ساتھ. اس دوسرے کا میں تمہیں ایک نئے عہد کا نیا پیالہ دیے جاتا ہوں, ایک عہد ہے. مگر سیمسن کے ماں باپ کے ساتھ ایک عہد کیا گیا تھا کہ یہ بچہ خدا کے لیے مخصوص کیا گیا ہے, خدا کے لیے علیحدہ کیا گیا ہے, خدا اس کے ساتھ ہے, خدا اس کے وسیلے بڑے کام کرے گا. کیا سیمسن کے بالوں میں طاقت تھی؟
क्या सैमसन के बालों में कुदरत थी? आप में से कोई बोलना चाहे, क्या सैमसन के बालों में कोई ऐसी जादुई ताकत थी? जब खुदा की कुदरत थी उसके अंदर, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा होता तो सैमसन आखिरी वक्त में सबसे ज्यादा फिलिस्तीयों को मारने वाला होगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक अहद था खुदा का उसके माँ बाप के साथ, और उसके माँ बाप का आगे कन्वर्ट करना। और ऐसा चलता रहा, वो लड़का बढ़ता गया और जिस जंग में गया वो जंग जीतता था। उसको रोक नहीं पाते थे, रस्सियां उसको रोक नहीं सकती थी, 100 की तादाद के लोग उसको बांध नहीं सकते थे। एक औरत की रस्सी ने उसने गुनाह किया। गुनाह जब आता है, मैं और आप खुदा की मर्जी से उसके सर पे उस्तरा मारा जाता है, उसके बाल गिर जाते हैं, उसको अंधा कर दिया जाता है। और सैमसन एक जेल के अंदर अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है। मगर बाइबल में लिखा कि सैमसन ने खुदा के आगे दोबारा झुका और खुदा से माफी मांगी। उसने बोला, खुदा एक बार फिर मुझे वो जोर दे कि बेशक मैं खुद भी मार जाऊं, मगर इन फिलिस्तीयों को आज मैं मार दूंगा। बेशक मुझे अपनी जान की जानी पड़े। क्या उसके बाद लोग ने उसका जोर करने, उसमें जो रूह बसता था, रूह के अंदर कुदरत है। वो रूह है जो नस्ल इंसानियत को जिंदगी देता है। ये वही रूह है जो यीशु को मुर्दों में से जिंदा करता है, और ये वही रूह है जिसका वादा यीशु ने मेरे और आपके साथ किया है। मगर ये रूह कभी भी गुनाह नहीं देख सकता। ये रूह गुनाह को नहीं देख सकता, क्योंकि वो पाप था, वो पाप है, और वो कदूस अब तक रहेगा। उसकी जात में गुनाह नहीं है, वो गुनाह नहीं जानता, वो गुनाह से वाकिफ नहीं रहना चाहता, वो गुनाह से नफरत करता है, मगर मुझ और आप जैसे गुनहगारों से मोहब्बत रखता है। सैमसन गुनाह करके गुनहगार हो गया था, मगर जब वो सैमसन दोबारा अपने घुटनों पे गया तो वो दोबारा उसी तरह उसकी जिंदगी पे आया, और जितने फिलिस्तीयों को उसने अपनी जिंदगी में नहीं मारा था, उस दिन उस अंधे ने उससे ज्यादा मार दिया। क्योंकि जब भी खुदा का रूह आपकी जिंदगी पे आता है, वो आपको कुदरत देने के लिए आता है, वो आपको जोर देने के लिए आता है। क्योंकि जब यीशु की जिंदगी पे गुनाह आया, जब यीशु सलीब पे लटका हुआ था, एक वक्त ऐसा आया कि आपने उसके अपना चेहरा उससे छुपा लिया, वो रूह उससे दूर हो गया। जब मेरे और आपके बाप दादा का गुनाह, जब मेरा और आपके गुनाह, जब मेरे और आपके आने वाले बच्चों के गुनाह उस यीशु की जिंदगी पे आए, जब खुदा के बेटे की जिंदगी में गुनाह आया तो बाप ने उससे अपने मुंह को घेर दिया। मगर जब उसने उनको फरा दिया तो वो रूह पतरस और उसकी 120 की जमात जो उसके वहां पे उसके साथ थी, उसके ऊपर आया। और जब वो आया तो उसके बाद नस्ल इंसानियत कभी भी दोबारा वैसी ना रही जो पहले थी। उसके बाद जिंदगियां बदलने लगे, उसके बाद मौत से होने लगे, उसके बाद लोगों को जिंदगी मिलने लगे जो अदन में वो जिंदगी जा चुकी थी। अदन में होता क्या है? 3 नंबर बात उसकी 6 नंबर आयत से, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, अगर बचने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया, और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने जीव के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। वो पहले ही नंगे थे, मगर जब आप और मैं पाक मुकामों में रहने के आदि हो जाते हैं, फिर मैं और आप अपने कपड़ों को नहीं देखते, अपने बहन और भाई की गलतियों को नहीं देखते, उनको पाप आंखों से देखते हैं। ये खुदा को पता है इसने गुनाह कर दिया है, मगर खुदा फिर भी
आदम को आवाज देता है और आदम से छुप जाता है। गुनाह मुझसे और आपको मजबूर कर देता है कि हम खुदा से छुपने लग गए, खुदा के लोगों से डरने लग गए, खुदा से खौफ आने लग गए, खुदा से दूर होने लग गए। मगर खुदा अगर सैमसन के लिए माफी कर सकता है, अगर खुदा पतरस को माफ कर सकता है, अगर खुदा साउल को पालूस बना सकता है, अगर खुदा दाऊद के गुनाहों को माफ कर सकता है, अगर खुदा एलिया को जो खौफ से भाग गया था उसमें जोर पैदा कर सकता है और उसको आज तक जिंदा अपने पास रख सकता है, तो मेरे और आपकी जिंदगी में क्या नहीं कर सकता? क्या मेरे और आपके घराने में वो क्या नहीं करने की कुदरत रखता? जो काम मुझसे और आपसे नामुमकिन है मगर उसी के अंदर मुमकिन होने लग जाता है। जो मैं और आप अपने आप को छोटा समझते हैं मगर जब हम यीशु में आते हैं तो हम हर एक जोरावर से जोरावर हो जाते हैं, हम हर एक लानत से ऊपर हो जाते हैं और वो लानत मेरे और आपके पांव के तलवे के नीचे आने लग जाती है। वो कुदरत जो मुझे खुदावंद यीशु मसीह के बिना मिली, जो उसके बदले के लहू के वसीले मुझ और आपको कुदरत मिलती है, उस कुदरत के अंदर कुदरत बसती है और वो कुदरत कोई और नहीं, वो मेरा और आपका यहोवा है जो मुहैया करना जानता है, जो राफा है जो कि शिफा देनी जानता है, जो जरी है जो कि देने की कुदरत रखता है, रखता था और रखता रहेगा। आपकी जिंदगी में मुश्किल हो सकती है, आपकी जिंदगी में दुख हो सकता है, मगर यीशु मुश्किल के लिए, यीशु दुख के लिए मार खा के गया है, कोड़े खा के गया है, दुख खा सह के गया है। मगर मैं और आप किस तरह जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या उस अदम की जिंदगी को आज भी अपने साथ रखना चाहते हैं? क्या अदर में आज भी अदर में ही रहना चाहते हैं? क्या अदर में ही रह के अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं? क्या अदर के अंदर ही आज भी रहना चाहते हैं? क्या अपने आप को खुदा से छुपाते रहे, अपने आप को खुदा से दूर करते रहे? अपने आप को क्या किया था? अदर में हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक अहद हुआ था जिस अहद को तोड़ा गया था। चर्च के अंदर लोग अपने आप को पाक, मुकद्दस और सबसे अच्छा समझते हैं, मगर चर्च में रहते हुए खुदा के साथ अहद करते और उस अहद को तोड़ते हैं। अदर में कोई बड़ा गुनाह नहीं हुआ था, अदर में वो गुनाह हुआ था जो आज हर रोज आप में से बहुत से करने की कोशिश करते हैं, जो हम में से बहुत से करते हैं, जो बहुत सा करना चाहते हैं कि खुदा के साथ वादा करके खुदा का काम नहीं करते। अगर आप समझते हैं कि आपने खुदा से अहद किया था कि मैं ये काम करूंगा, आप नहीं करते, तो आप ये कहें कि मेरे हालात नहीं थे, तो आप इब्लीस की जुबान को इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई बड़ा गुनाह नहीं किया था आदम और हवा ने, सिर्फ और सिर्फ अहद को तोड़ा था, उस वादे को तोड़ा था जो खुदा ने आदम के साथ किया था। और वो अहद ये था कि तू हर चीज को खाना, सिर्फ जो बीच में एक दरख्त है उसको मत खाना। क्या हुआ? वो देखने में अच्छा था। गुनाह हर दफा देखने में खूबसूरत लगता है, गुनाह हर दफा ताजगी देता है, लज्जत देता है, आपको अट्रैक्ट करता है, आपको अपनी तरफ माइल करता है, आपको अपनी तरफ लेके चलता है, आपको अपने साथ रखना चाहता है। और क्या होता है कि दोनों उस फल को खा लेते हैं और एकदम अपने आप को नंगा देखते हैं और कहते क्या है? और उन्होंने खुदावंद की आवाज ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और अगर उसकी बीवी ने आपको खुदावंद के हसूद से बाग के दरख्त में छुपाया, तब खुदा ने आदम को पुकारा, उसने कहा तू कहां है? आज क्या खुदा मुझे नहीं कह रहा दाऊद तू कहां? आज क्या खुदा आपसे नहीं बुला रहा कि बेटा या मेरी बेटी तू कहां है? हम कहां जी रहे हैं? हम कहां जीना चाहते हैं? क्या दुनिया की लज्जत
آج بھی مجھے اور آپ کو اسی طرح موت میں لے کے جانا چاہتی ہے؟ کیا میں اور آپ آج بھی اس آواز سے چھپنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ چرچ میں جینے کے باوجود بھی خدا کو کبھی بھی سمجھتے نہیں، خدا سے پیار نہیں کرتے، خدا کی آواز سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ خدا بلاتا رہتا ہے اور وہ بہرے بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ آدم بہرا نہیں تھا، آواز سنتا تھا۔ آج بھی لوگ سنتے ہیں مگر بہروں سے بدتر ہیں۔ آج بھی لوگ ان کانوں سے خدا کے کلام کو سنتے مگر اس کلام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ خدا آدم کو پکارتا ہے، آدم، وہ چیز جس کے لیے میں نے محنت کی، وہ جو میری اپنی شبیہ میں بنی ہے، وہ تخلیق جو کہ میری مانند ہے، وہ جس کے پاس دو ہاتھ ہیں، وہ جس کے اندر ایک دل دھڑکتا ہے، وہ جس کے پاس کان ہے، وہ جس کے پاس منہ ہے، یہ بائبل میں خدا کی نہیں لکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ خدا کا ہاتھ اتنا چھوٹا نہیں، خدا کے کان بھاری نہیں، یا خدا کو اپنے دل کے موافق کو مل گیا۔ اگر یہ سب کچھ تھا تو خدا پھر بھی اس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ چیز، وہ تخلیق جس کے لیے خدا کو اپنے آپ کو ہاتھوں کو استعمال کرنا پڑا، اور خدا نے مٹی لے کے آدم کو بنایا تھا، اس کو محنت کرنی پڑی تھی۔ دنیا کی کل کائنات جس کو آج تک بھی دنیا کی سائنس پہنچ نہیں سکی کہاں تک ہے، اس کو خدا نے صرف اپنے منہ سے کلمہ بول کے بنایا، کلمے کے وسیلے بنی، مگر مجھے اور آپ کے لیے اس کو محنت بھی کرنی پڑی تھی۔ اس کو بولنا پڑا تھا، آؤ ہم انسان کو بنائیں، آؤ ہم انسان کو تخلیق کریں۔ The Creator has to work for you and me۔ اس کا پسینہ گرا ہوگا، اس نے محنت کی ہوگی، اور اس نے کائنات کو دیکھا ہوگا کہ کہاں سے وہ مٹی اٹھانی ہے، کہاں پہ سب سے خوبصورت مٹی ہو، اور اس خوبصورت مٹی سے آدم کو بنایا گیا۔ اور وہ آدم صرف ایک عہد میں خدا کے ساتھ وفادار رہ سکتا، صرف وہ چیز جو آنکھوں کو اچھی لگتی ہے۔ آج کتنے ایسے کام ہیں جو میں اور آپ صرف اپنی آنکھوں کے لیے کرتے ہیں، اپنے دل کے لیے کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آدم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو میرے اور آپ کی وجہ سے کیا کچھ ہو رہا ہوگا آنے والے زمانے میں؟ میرے اور آپ کے وسیلے کتنی نسلیں لعنتی بن سکتی ہیں، یا میرے اور آپ کے غلط زندگی جینے سے کتنے قوموں میں لعنت کنورٹ ہو سکتی ہے۔ ایک آدم، ایک گناہ، آج یسوع پہ ٹکے تھا، دیکھیے 100 گنا، 10 گنا۔ یہودیوں نے یسوع کو صلیب چڑھایا، فقیر فرشتوں نے چڑھایا اس کو ایک دفعہ۔ آج میں اور آپ اس کو بار بار صلیب چڑھاتے ہیں اور بار بار صلیب سے اتارتے ہیں، پھر چڑھاتے ہیں، پھر اتارتے ہیں، صبح اٹھ کے پھر چڑھانا، پھر اتارنا۔ کب تک میں اور آپ اس گناہ کی زندگی میں رہنا چاہتے ہیں؟ کب تک میں اور آپ گناہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ کہ یسوع مجھے اور آپ کو پیار نہیں کرتا؟ یسوع اگر سمسن کو معاف کر سکتا ہے، اگر آدم کے اس گناہ کے باوجود بھی وہ آدم کو اس سے پیش کر کے یہاں سے نکالتا، کابراون نے آدم کو پکارا، اس سے کہا اس نے کہا میں باہر میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا
तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था उसे ना खाना? आदम ने उससे कहा, जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा, तूने ये क्या दिया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझे बताया तो मैंने खाया। 4000 साल की लानत इन लफ्जों में मेरे और आपके आया। किसी ने अपनी गलती नहीं मानी। आज हम चर्च में रह के चर्च में जिंदगी जी के खुदा के साथ इसी तरह करते हैं। मैं चर्च से दूर इसलिए हो गया कि पास्टर ठीक नहीं था। मैं चर्च इसलिए नहीं आता क्योंकि पास्टर मेरी बात नहीं सुनता। मैं चर्च इसलिए नहीं आना चाहती कि पास्टर दूसरे को ज्यादा प्यार करता है। क्या यीशु वो पास्टर है? तो यीशु आपके अंदर है। आज चर्च में रह के लोग अपनी गलती को, अपने अहद को तोड़ने को दूसरे के ऊपर डालते हैं। अगर आदम या हवा दोनों में से एक भी खुदा के आगे झुक जाते तो खुदा को 4000 साल तक नस्ल इंसानी को लानत से न गुजारना होगा। 4000 साल तक नस्ल इंसानियत को मौत के अंडर रहना पड़ा, जहन्नम की ताकतों के अंडर रहना पड़ा, क्योंकि उन दोनों में से किसी ने अपने आप को खुदा के आगे नहीं रखा। उन दोनों में से किसी ने माफी नहीं मांगी। उन दोनों ने किसी ने ये नहीं बोला, बाप मुझसे माफ गलती हो गई, मैंने गुनाह किया है, मुझे माफ कर दे। आदम ने अपनी गलती हवा पे डाली और हवा ने सांप पे डाल दी। आज हम किस पे गलती डालते हैं? आज हम किस पे गलती डालना चाहते हैं? क्या हम वही लानत दोबारा वापस नहीं लेके आ रहे? और खुदा ने यहाँ पे पहले उसे कंफर्म किया कि ये माफी मांगेंगे या मुझे गलत कहेंगे। आज भी बज़ाहिर जब आप पास्टर के लिए कहते हो तो आप खुदा को गलत कह रहे होते हो कि तू पादरी का टेस्ट तेरी कॉल सी, तू उन्हें मसा करवाया सी, तू उन्हें पादरी बनाया कि तेरी वजह तो वो गुनाह हो गया। मुझे आदम ने ऐसे ही कहा था, जो औरत तू मेरे पास लाया उसने मुझे दिया तो मैंने खा लिया। जाहिर आदम कह रहा था गलती तेरी है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। गलती तेरी है कि तू ना वो औरत लाता ना वो फल खाता, ना वो औरत आती ना वो देखती, ना उसको अच्छा लगता, ना मुझे देती, ना मैं ये खाता। आज हम इसी तरह जी रहे हैं। आज इसी तरह लोग जिंदगी जीना चाहते हैं। प्लीज आप लोग समझते हो कि अबलीस मजहबों की सियासत कर रहा आपसे, अबलीस मजहबों से बहुत ऊपर चला गया। मैं और आप फिरकों में मजबूर बैठे हुए हैं। अबलीस आपके मेरी नस्ल खत्म करना चाहता है। होमोसेक्सुअलिज्म करवा के, औरत की शादी करा के, मर्द की शादी करा के, बच्चे को ये राइट दे के वो अपना जेनेटिकली हक ले सके कि वो लड़का पैदा हुआ है, मगर वो 6 साल का बच्चा पब्लिकली अगर ये कह दे कि मैं लड़की हूँ तो उसका माँ बाप, उसके टीचर, ये जमाना उसको ये हक दिलवाएगा और उसके माँ बाप से लड़ेगा। अबलीस आपको और मुझे उस तरह नहीं देखता जिस तरह आज से 2000 साल पहले देखता था या 1000 साल पहले देखता। उसने बहुत से मज़ाहिब बनाए, उसने बहुत से फिरकों को बनाने की कोशिश की और लड़वाना चाहा, मगर उसकी सोच बहुत दूर तक जाती है क्योंकि खुदा के साथ बसता था। आज लोग खुदा के होते हुए भी खुदा से दूर हैं और वो खुदा के मुखालिफ होते हुए भी खुदा को समझता है, खुदा को जानता है और खुदा के मुखालिफ इस तरह काम करता है। वो आज दुनिया के अंदर, जर्मनी के अंदर इस स्टैंडर्ड पे आ चुका है कि वो एनिमल सेक्स प्रोस्टिट्यूशन करवाना चाहता है। ऑफिशियली तौर पे आप अगर जर्मन जाते हैं
वहां पे ये राइट मिलेगा और गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं कह पाएगी। एडम मॉर्गन इस टाइम तलवार यहां पे लेके फेर रही है कि वो लेस्बियंस को, गेस को राइट दे या ना दे शादी के लिए। जिस मुल्क में मैं और आप बस रहे हैं, दुनिया का दूसरा मुल्क था जिसने इस चीज की इजाजत दी थी। क्या मतलब है? वो आपको और मुझे जड़ से खत्म करना चाहता है। वो आपको और मुझे उस जड़ से, उस पत्थर से, पत्थर ना पत्थरस है ना कोई और हो सकता है। वो पत्थर यीशु था, यीशु है, यीशु रहेगा, मगर उस पत्थर से मुझे और आपको जुदा करना चाहता है। मगर किस तरह होता है? जब मैं और आप खुदा के आगे अपनी गलती नहीं मानते, जब मैं और आप नंगे होना चाहते हैं, जब मैं और आप नंगे बन के जिंदगी जीना चाहते हैं। और आदम ने कहा, जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे दरख्त का फल दिया, मैंने खाया। 14 नंबर आए, खुदा ने शाम से कहा, इस दिन तूने ये किया तो सब छुपाए और 10 जानवरों में मालूम ठहरा तो अपने पेट के बाद चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। खुदा इस पेश कर कि दुनिया में लानत देता, खुदा ने उनको मौका दिया। खुदा ने उनसे पहले पूछा था कि तूने क्या किया, कहाँ है, मगर आप लानत आ रही है, मगर वादा उसके साथ है। वो एक और अहद करने जा रहा था, और वो अहद क्या था, वो वादा क्या था, और वो दोस्त क्या था। और खुदा ने शाम से कहा, 15 नंबर है, और मैं तेरी और औरत के दरमियान नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान गिरावट डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एक पर ताकेगा। खुदा एक नया अहद ले रहा है। ये सबसे परफेक्ट अहद था। ये वो वादा था जो खुदा नस्ल इंसानियत से जिंदगी से निकालने से पहले जिंदगी में दोबारा मिला रहा था। इससे पेश कर कि आदम और हवा जिंदगी में से निकाले जाते, जिंदगी का वादा लेके निकल रहे थे। इसलिए यीशु ने कहा कि मेरे खून में एक नया अहद है, ये मेरे नए अहद का नया प्याला है। क्योंकि वो अहद नया इसलिए था क्योंकि वो नया होना पड़ा था। क्योंकि जो पहला अहद, जो पहला प्याला, जो पहला अहद हुआ था, वो गुनाह के वसीले टूट गया था। और ये उस अहद की कंफर्मेशन थी जो कि आदम ने निकालने से पेश कर उसने दी थी कि मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान, यीशु किसी नस्ल से नहीं आया, वो औरत की नस्ल में से आया। उसका बाप एक है, उसका नाम यहोवा है। The one who says I am, so I am. मैं सो हूँ। One who exists in himself, जो आप में खुद ही खुद सब कुछ है। वो मेरे और आपके साथ रहना चाहता है, वो मेरे और आपके अंदर काम करना चाहता है। और जब ये सब कुछ हो रहा था, आज महीना खत्म होने को है, छठा महीना खत्म होने से पेश कर वो जब अहद आया था, वो छठा महीना था। 6 माह की हामला थी अलिशबा। छठे महीने में जिब्राइल मरियम को मिलने आया। मैं यीशु के नाम पे डिक्लेयर करता हूँ, आई डिक्लेयर द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो चीजें आपको बांधी हुई थी, जो लांछें आपको रोकी हुई थी, जो कि मुश्किलात आपकी जिंदगी में थी, यीशु के नाम में रद्द होती हैं, यीशु के नाम में खत्म होती हैं। अगर वो उस टाइम छठे महीने में जिब्राइल को भेज सकता है, तो आज मेरे और आपके लिए खुद यहाँ पे मौजूद है। जब जिब्राइल आके लांछें तोड़ सकता है, लांछों को खत्म कर सकता है, तो वो जो जिब्राइल को भेजता है, वो क्या करेगा मेरे और आपकी जिंदगी में? वो क्या नहीं कर सकता मेरे और आपकी जिंदगी में, मगर कब करता है? जब मैं और आप मुश्किल में जो अपनी गलतियों की वजह से जाते हैं, सैमसन की तरह उसके आगे झुक जाए
اور رو کے گڑگڑا کے اس سے معافی مانگے، اس سے بولے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ایک دفعہ وہ مسا دوبارہ دے دے، ایک دفعہ وہ رو دوبارہ دے دے، ایک دفعہ وہ زور دوبارہ دے دے کہ میں ابلیس کا مقابلہ کر سکوں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے تم جب ابلیس کا مقابلہ کرو گے، بظاہر بہت لوگ بولے کہ کہاں سے اگر اس کو سمپل میں گئے تو بظاہر خدا کا انسان کہا تھا جب تم ابلیس کا مقابلہ کرو گے تو تم سے بھاگ جائے گا۔ مجھے اور آپ کو اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس کا مقابلہ جسم سے نہیں ہو سکتا، جسم سے نہیں کر سکتے، جسم کے پاس طاقت نہیں ہے کہ اس لوسیفر کا مقابلہ کر سکے۔ جب یسوع جسم میں تھا تو وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ ابلیس سوچ بھی نہیں سکتا کہ خدا کا مقابلہ کرے، مگر جب وہ یسوع جسم میں تھا تو سب سے پہلے وہ آیا اس سے مقابلہ کرنے، وہ آیا اس سے لڑنے۔ جب تک میں اور آپ اپنی جان جسم کے ساتھ جیتے رہیں گے، جو گناہ ہے جب تک ہم اس سے ہارتے رہیں گے۔ چرچ کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتا، نہ کھائے گا، کیونکہ چرچ نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، جس خدا کا چرچ ہے جو موت پہ فاتح ہے، جو ابلیس کی ہر تاثیر پہ فاتح ہے، جو ابلیس کی ہر قوت پہ فاتح ہے، جو ابلیس کے ہر حربے پہ فاتح ہے، جو ابلیس کی ہر چال کو شکست دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرا اور آپ کا خدا نہ کوئی جنگ ہارا ہے نہ کوئی ہارے گا، مگر وہ جنگ کب میرے اور آپ میں لڑتا ہے جب میں اور آپ اپنے گناہ سے اپنے آپ کو رد کر لیں، گناہ سے دور ہو جائیں۔ جب تک گناہ میں زندگی جئیں گے، جب تک ہم مشکلات میں زندگی جئیں گے، جب تک ہم گناہ میں زندگی جینا چاہتے ہیں، جب تک ہم اس طرح زندگی جئیں گے۔ یسوع میرے اور آپ کے لیے انسان بن کے آیا، کیسی بات ہے۔ وہ خدا عدن میں آدم کو نکالتا ہے، مگر آدم نہیں، آدم کو کہہ دیتا ہے، اور ابلیس یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ابلیس سے جانتا ہے خدا اپنے تخت کو کس طرح بیان کرتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے ہی از اے جیلس گاڈ، اردو کے اندر اس کا ایگزیکٹ ترجمہ نہیں صحیح آ سکتا، اس کا مطلب حسد کرتا ہے، وہ ہی از اے جیلس، جو اپنے تخت سے محبت کرتا ہے۔ ابلیس اس کا تخت ہی چاہتا تھا، اس جیسا تخت مانگتا تھا۔ ابلیس یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خدا اپنے تخت کو چھوڑ کے انسان بن لے گا۔ ابلیس کی یہ سوچ میں نہیں تھا، مگر اس نے عدن میں ایک وعدہ کیا تھا، وہ عہد تھا۔ آج میرے اور آپ کی زندگی پہ ایک عہد ہے، میں اور آپ لعنت کے فرزند نہیں، میں اور آپ تاریکی کے فرزند نہیں، میں اور آپ نور کے فرزند ہیں، میں اور آپ نور کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ وہ نور جس سے سورج اجازت لے کے روشنی زمین کو دیتا ہے، میں اور آپ جس نور کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ جو سورج جو دنیا کو روشنی دیتا ہے، یہ اس نور سے اجازت لیتا ہے تو پھر اس دنیا کو روشنی دیتا ہے۔ میرے اور آپ پر کتنا نور ہے میں اور آپ یہ جانتے نہیں ہیں، میرے اور آپ میں کتنی قدرت ہے ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، میرے اور آپ میں کیا اختیار ہے ہم یہ جاننا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم گناہ میں زندگی جینا چاہتے ہیں۔ آج بھی ہم اپنی غلطیاں دوسروں کی زندگی پہ ڈالنا چاہتے ہیں، آج بھی ہم دوسروں کے ساتھ دوسروں کی طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ کیوں نہیں سوچتے؟ یسوع نے کہا پہلے تمہیں سکھایا گیا تھا ہاتھ کے بدلے ہاتھ، آنکھ کے بدلے آنکھ، مگر میں جو ہے دیتا ہوں اپنے دشمن سے محبت کرنے۔ میرے بہنوں بھائیوں، بظاہر مجھے اور آپ کو اس محبت کو دکھانا ہے، تو محبت یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کسی اور پہ مت ڈالیں، کیونکہ جب ہم کسی پہ غلطی ڈالتے ہیں تو ظاہر اس کو اپنا دشمن بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے مخالف ہے، اس کی غلطی کی وجہ سے میرے پہ غلطی آ رہی ہے، مگر اگر منہ میں
गलती खुद इकरार कर तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज से 100 साल पहले मैं डिफरेंट था। हर देश के अंदर आप सीखते हो। एक साल हमारे चर्च को होने लगा ऐसे बात 3 से 4 मिनट के अंदर 1 जुलाई शुरू हो जाएगा। 31 जुलाई को हम ये चर्च शुरू किया था एक जगह, एक साल पहले 17 को मैंने अनाउंस किया था। सिर्फ आज रात जाग के ये सोचना आप नीचे आए हो या आगे बढ़े। 1 साल पहले आप कहाँ थे? आप पीछे आ रहे हो या आगे जा रहे हो? या उस 1 साल के दौरान आपने पहले 4 माह आगे गए थे और आखिरी 8 माह पीछे आ रहे हैं। अगर आप ये समझते हो कि आप पहले खुदा की वफादारी से काम करते थे तो मेरी बहनों और भाइयों जो आखिरी दम तक वफादार रहेगा जिंदगी का ताज उसको मिलना देगा। ये नहीं कि 50 साल खिदमत की थी आपने 2 साल जैसी कर लेती है। अव्वल आखिर और आखिर अव्वल हो सकते हैं और हो भी सकते हैं और होंगे भी। जो बहुत से अपने आप को ठेकेदार समझते हैं। एली के साथ हुआ, एली सारी जिंदगी करता रहा एंड में शैमुएल उसके ऊपर चढ़ा गया। विश्वास से मुझसे प्यार करता है। क्यों हम अपनी गलतियां दूसरों की जिंदगी पे डालते हैं? क्यों हम अपने गुनाह की माफी नहीं मांगते और दूसरों को गुनाहगार करते हैं? यीशु मेरे और आपसे प्यार करता है। यूरोप के अंदर मेरी ऑनर है कि मैं रात को 11 बजे चर्च खोल सकता हूँ। मैं हफ्ते को चर्च खोलता हूँ। मैं संडे को जब हम इबादत कर सकता हूँ। हफ्ते के किसी दिन कोई भी कदम आए उसके लिए चर्च खुला। क्यों? क्योंकि हम अच्छे नहीं हैं, क्योंकि खुदा का प्लान इस तरह है कि मेरे और आपका कोई कारनामा नहीं है। पतरस ने तो बड़ा काम नहीं किया था। अगर उस दिन सारे निकल आते पानी से बाहर तो सारे चल पड़ते। फर्क ये था इसके अंदर ईमान था कि वो किश्ती से बाहर आ सकता है। आज आप अपनी जिंदगी में बैठ के जिंदगी जीना चाहते हैं या पतरस की तरह अपनी जगह छोड़ के यीशु को देख के सिर्फ घबरा के पीछे होना चाहते हैं या उस किश्ती से बाहर निकलते हैं, उस पानी का मजा चखना चाहते हैं? जब पानी पे चलते हो मुश्किलात आती हैं, बहुत सी मुश्किलात आई, बहुत से हालात आए, बहुत से दुख आए, बहुत सी तकलीफें आई, मगर खुदा वफादार था, वफादार है और अब तक वफादार रहेगा। बहुत से लोग शायद मुझे और आपको छोटा समझते होंगे, मगर पूरे यूरोप में ऐसा कोई बुजुर्ग नहीं जिसका कोई हालत दुनिया की किसी श्रेणी में यूज करके आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग उस किश्ती से बाहर आते हैं, क्यों पतरस का नाम ज्यादा लिखा गया है और पतरस से पालूस का ज्यादा लिखा गया है? क्योंकि पतरस एक हद तक आया, पालूस पहले दिन उस सारी चीजों को देख के बाहर निकल आया उस पौध से। जो लोग मुश्किलात में चलना नहीं चाहते हैं वो खुदा के लिए उतना बड़ा नहीं दे सकते। कोई भी दुनिया का बड़ा खिलाड़ी, बड़ा सियासतदान, बड़ा बिजनेसमैन जब तक नहीं बनता जब तक वो दुख से नहीं गुजरता, डेडिकेशन से नहीं गुजरता, जब तक वो तकलीफ से नहीं गुजरता, जब तक वो अपने बदन को मारता नहीं, अपने पैसों को नहीं मारता। मगर मैं और आप कहाँ हैं? मैं और आप कहाँ रहना चाहते हैं? बाइबल is very clear. It was never about quantity. It was always about quality. अगर क्वांटिटी की बात होती तो यीशु लाखों का चर्च छोड़ के इस दुनिया में से जाता, मगर उसने तादाद को कभी नहीं लिया, उसने क्वालिटी को चुना, उन क्वालिटी को पॉलिश करके उसने खड़ा किया। अगर आप ये समझते हैं कि क्वालिटी क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
ये मैं और आप सोचते हैं, बाइबल इस तरह तालीम नहीं देती। खुदा एक वक्त में एक नबी खड़ा करता था बड़ा, खुदा उसके नीचे रहते, वो 4 मुसक्ता कर देता तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ दुनिया में ले जाता, मगर ऐसा नहीं किया उसने। अगर वो 4 यीशुआ खड़े कर देता तो लोग उड़ के जर्दन के पार चले जाते, अभी तो चल के जाना पड़ा था। अगर एक एलिया आया था, एलिया 2 के ऊपर मसा डाल देता तो लीशा जैसे 2 और खड़े हो जाते, कई और मुर्दे जिंदा हो जाते, मगर खुदा इस तरह नहीं करता। खुदा जब यीशु दुनिया में आया 3 साल के अंदर उसका चर्च नहीं बन सका, क्योंकि चर्च जब उनकी बिल्डिंग नहीं है, चर्च बाकी में वाला, इसलिए वो मुझ में और आप में गुनाह देखना चाहता। यीशु ने उन 11 चर्चों को बनाया था जो काउंटिंग नहीं थे, वाले जिनकी जिंदगियों में से मौजूद होने वाले थे, जो अपनी जिंदगी में से बाकी गुनाह को निकालने वाले। आज हम समझते हैं कितने साल से चर्च आने वाला योग हो रहा है, नहीं। जब नंबर 1 थे यीशु से चलने वाले 3 साल के एक ही ईमानदार वफादार नहीं, सब में गलतियां थी, सब यीशु को छोड़ के भागे, सब यीशु के, लेकिन जब रूम पे आया तो मेरे मौजूद शुरू रखी, उल्टी स्लीपें नहीं लाती, तेल के कड़ाहे में डालने के लिए तैयार थे, अपने बच्चों को मरवाने के लिए तैयार। क्यों? क्योंकि गुनाह उनकी जिंदगी में से जा चुका है। जो चीज उनको खुदा से छुपाती थी वो गुनाह थी। तो यीशु से ही भागते थे, वो अपने गुनाह से छुपते थे, उनकी जिंदगी में गुनाह था। मगर जब गुनाह उनकी जिंदगी से चला गया फिर वो कभी भी छूटे नहीं। आज यीशु मुझे और आपको भी बुलाता है। आज पौलुस नहीं है, आज पतरस नहीं है, पतरस था मगर अब नहीं है, क्योंकि पतरस का एक वक्त था। इसी तरह मूसा का एक वक्त था, इब्राहिम का एक वक्त था, एलिया का एक वक्त था, अलीशा का एक वक्त था, इसी तरह पतरस का था, यूहन्ना का था, पौलुस का था। आज आपका वक्त है, आपका वक्त, आपका वक्त, आपका 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 आज हमारा वक्त है, क्योंकि खुदा हर वक्त के लिए अपने लोगों को खड़ा करता है। खुदा हर वक्त में अपने खादमों को खड़ा करता है। खुदा हर वक्त के अंदर उससे बेशतर से ज्यादा बड़ा सूरमा खड़ा करता है। हर दौर मुझसे बड़ा सूरमा खड़ा हुआ जो पहले गुजर गया था, क्योंकि खुदा जो चाहे वो कर सकता है। अगर आप समझते हैं कि मैं और आप छोटे हैं तो मैं और आप अपने खुदा को छोटा समझते हैं, क्योंकि जो मुझ में बसता है वो हर खुदा से ऊपर, हर खुदा उसके आगे झुकता है, हर लान उसके ताबे है। लूसीफर खुद उसके पांव के तलवे के नीचे है। लूसीफर खुद उससे डरता है और उसको पता है कि तारीकी मेरे साथ है। इसलिए उसे बोला जब यीशु जमीन पे आया, तू वक्त से बेशतर क्यों आ गया? वो डर गया कि मेरी हुकूमत खत्म होने को है, वो डर गया कि मेरा अख्तियार इस दुनिया में जाने को है। ये मेरा वक्त नहीं था, वो जानता उसका वक्त कितना है। मगर मैं और आप मौत के नहीं हैं, मैं और आप चंद रोजा नहीं है। मैं और आप जिस रूह में बसते हैं, जो मुझ में और आप में बसता है, वो रूह कभी मर नहीं सकता। यदि सब मर भी जाए तो मेरा और आपका रूह अब तक खुदा के साथ रहेगा। क्या मैं और आप उस खुदा से वहां पे भी कुछ छुपाना चाहेंगे? क्या मैं और आप वहां पे भी ये कहेंगे कि यीशु खुदा, हमने सुना था कि ये नहीं करना मगर हम करते रहे, आज हमें थोड़ी देर छुपने दे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं और आप जिंदगी के फरजान हैं, और जिंदगी के फरजान जिंदगी पाते हैं। मैंने बहन को 6 माह पहले एक बात बोली थी, परामर्श करते हैं, इसने अपनी वो बात पल्लू से बांधी। सिर्फ ये और मैं जानती हूँ, मेरी बीवी भी नहीं जानती, इसका शौहर भी नहीं जानता। और
मैं यहाँ पे नहीं था, फिर भी खुदा ने इसको बरकत दी। मैं फुटबॉल में था, लड़की आई मास्टर की बहन की, उनको क्या नाम बोलता है, उनके घर में थे, उनके घर में कहते नहीं कोई नहीं, मैंने लड़की आदमी बोली इसके ऊपर ये लड़की है, मैं बारे में नहीं क्या बारे में नहीं बोलता, का मसला जिसके ऊपर जिसने मैनिफेस्ट करना उसी में आपने बोलना और वो रो ही जाए, मेरी रोए, मैं गुनहगार हूँ। उसके बालों में ताकत थी, मैं खुदा से दूर रहती थी, वो अपना गुनाह छुपा नहीं देती थी, और मैं उसको 2 दिन तक एक चीज समझाता रहा, नहीं सिस्टर, हर इंसान से कहते नहीं भाई मैं गुनहगार हूँ, मैं खुदा को धोखा देती आई हूँ, मैं खुदा से भागती रही हूँ, खुदा मुझे बरकत देता रहा और मैं हमेशा दुनिया में जाती रही थी। क्यों खुदा ने उसको बरकत दी? क्योंकि वो अपनी गलतियों का इकरार कर रही थी और अपनी जिंदगी में से उस गलाजत को निकाल के बाहर फेंक रही थी। यीशु कोई इबादत नहीं थी वहां पे, मेरा खाना था, दुआ यहाँ पे मौजूद है। लड़कियों से मैंने कहा मैं दुआ की, इनमें से किसी को नहीं पता चला, मैं तो बोल में सुन रहा हूँ बैरमान बोलूँ तो बोलने लगे। मैंने किसी को नहीं बोला कि गवाह है, मैंने किसी को नहीं बताया कि लड़की ने बोल दिया, तो लड़की ने भी नहीं बताया। हम चले गए, जब वो रात को केली दुआ में बैठी तो फिर बोलने लगी। सुबह 7 बजे फोन करके कहती मैं वाकई बोलने लगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने मुंह में से गलाजत को बाहर निकाला तो खुदा का उसकी जगह में आ गया। खुदा जब तक नहीं आता जब तक गुनाह अंदर रहता है, खुदा जब तक नहीं बच सकता जब तक जो अंदर है वो बाहर नहीं निकलता। इसलिए यीशु ने कहा जो अंदर जाता है वो गुनाह नहीं करता, मगर जो बाहर निकलता है वो करता है। वो गुनाह आपके मेरे मुंह में से निकलता है, मगर बरकत मुंह में से निकलती है। बस साहिब उस बेटी ने ही सब कुछ किया, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, ना मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके 2 दिन का उसका वो अहद था कि अब के बाद मैं खुदा से वफादार होंगी, अब मैं उस तरह नहीं जीना चाहती, अब मैं उस तरह नहीं रहना चाहती, अब मैं गुमराही में नहीं रहना चाहती, मेरे दुआ करो। उसने ना पैसा मांगा ना कुछ मांगा, उसने नहीं बोला कि मुझे बैठ दुआ चाहिए, उसने कुछ नहीं मांगा, वो रोती थी लड़की। खुदा आज मुझे और आपको इस तरह करना चाहता है। खुदा मेरे और आपके बच्चों को भी यूं करना चाहता है। खुदा मेरे और आपकी नस्ल को बरकत देना चाहता है, मगर मैं और आप क्या चाहते हैं? उस मुंह को बंद करके और आदम की तरह के कुलदीप ने कहा थोड़ा सा नहीं आया, सुनील के बाद चाबी थी वो नहीं आया। दाऊद की मां ले डालती है, दाऊद खुद फिरता है। मैं चल इससे नहीं आया क्योंकि दाऊद वहां पे नहीं था। जिस मर्द में बसता है वो आप में भी बसता है। आमीन। वो आप में भी बसता है, उससे दूसरे ने भी बसता है। जितना मुझ में काम करता उससे ज्यादा आप में करना चाहता है, मुझसे ज्यादा आप में करने की कुदरत रखता है, करने का इख्तियार रखता है, वो करना जानता है। मत एक्सक्यूज दे, मत किसी का एक्सक्यूज सुने। मुझे लोग हर एक्सक्यूज देता है, मैं किसी को आगे से जवाब देता रहता, कोई बात नहीं मेनू दे दे, हाथ को धमकी लाना दे दो, मैं क्या करूंगा? बहुत से लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत से बैठे हैं, बहुत से नहीं बैठे, मगर हर एक के पास एक्सक्यूज होता है।
और मैं किसी से नहीं पूछता आप चर्च नहीं है, आप चर्च नहीं है ना, मैं किसी का काम चर्च आओ, आपने मेरे लिए नहीं आना, आपने अपने लिए आना। इस खुदा ने मुझे बुलाया है, कहीं पे भी खड़ा कर सकता हूं। अगर उस खुदा की मैंने आवाज ना सुनी नहीं थी तो मैं कभी भी अपने आप को पास करना चाहता। अगर उस खुदा ने खुद मुझे पास्टर 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 कह के नाम बुलाया होता तो मैं कभी अपने नाम के साथ किसी को पास्टर न लिखने देता। मुझे किसी से फिक्र नहीं है कि किसने क्या किया, मुझे ये पता है जिसने मुझे बुलाया है वो हमेशा मेरे साथ है। जिसने आपको बुलाया है वो हमेशा आपके साथ है। जो आपके लिए मरा है वो हमेशा आपको जिंदगी देता है। जो आपको लानत में से निकालता है उस लानत को बरकत में बदल चुका है। वो बरकत आपको दे चुका है, वो बरकत आपके ऊपर है। अब आप उस बरकत में रखते हैं जो उस बरकत को लानत में बदलते हैं। जो ताज साउल की जिंदगी पे आया था, जो मसा और जो मसा साउल की जिंदगी पे आया था, बरकत थी। मगर उस साउल ने उस बरकत को लानत में बदल दिया। उसकी नस्ल में से बरकत को निकाल दिया। ये नहीं कि आपको खुदा ने बरकत दी है तो आपकी नस्लें बरकत पाएंगी। जब तक आपकी जिंदगी में वफादारी, फर्माबरदारी और ताबेदारी नहीं है, जब तक आपकी नस्लें बरकत नहीं पाती। साउल की बरकत थी, साउल बादशाह था, साउल बादशाह रहा और साउल बादशाह के तौर पे मरा, मगर उसकी नस्ल फिनिश। दाऊद भेड़ बकरियां चराता था, बादशाह बना, बादशाह के तख्त पे बैठा, बादशाह के दौर में मरा। दाऊद का बेटा बादशाह बना, उसका बेटा, उसकी नस्ल बादशाह बनी। यहां तक कि जब खुदा जमीन पे आया तो दाऊद के नस्ब नाम में से उसने एक औरत को चुना। वो नस्लों को बरकत देता है। क्या मैं और आप उस बरकत को एक नस्ल तक रखना चाहते हैं या नस्लों में डालना चाहते हैं? अगर नस्लों में डालना चाहते हैं तो आज के बाद इस गुनाह के काम को बंद करना है। बुरी सोचें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। चंद लोग समझते कि बहुत जोरावर है, अपनी इसका पहले हमले में नीचे गिर जाते हैं। चंद लोग छोटे से बच्चे होते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं पता होता, कोई जंग नॉलेज नहीं होती, खेतों में सूख के आ जाते हैं, मैंने कपड़े पहनते हैं, पर उसके कपड़े कैसे होंगे, डालते हैं पानी के होंगे। ये क्यों? क्योंकि उसकी सोबत बुरी है, उसकी सोबत खुदा के साथ थी। वो भेड़ बकरियां चुराता था मगर उस दौरान खुदा की हामद करता था, खुदा की परस्तिश करता था, खुदा के आगे झुकता था। उसकी सोबत इस इंसान के साथ ना थी, उसकी तैयारी किस इंसान ने नहीं करवाई। उसका ट्रेनर वो था जिसके नाम पे वो खड़ा हुआ था। आज वही यीशु आपको बुलाता है, आज वही यीशु आपको तैयार करना चाहता है, आज वही यीशु आपको इस नस्ल में, इस खित्ते में, इस कौम में इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आप ये समझते हैं कि फसल कम और मजदूर ज्यादा है तो ये आपकी गलती है। फसल आज भी ज्यादा है, मजदूर आज भी कम है। आप मजदूर हैं मगर आप अदन में रह के जिंदगी जीना चाहते हैं तो सदन के बाद से बाहर आके उस
यीशु के साथ फतह में जिंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि अदन में मौत है, क्योंकि अदन गुनाह छुपाता है अपने, मगर यीशु आपके गुनाह छुपाता नहीं बल्कि गुनाह से आजाद करता है। गुनाह के तालीम नहीं देता, गुनाह के जड़ को आप इसे निकालता है। वो कहता है गुनाह करने से नहीं, सोचने से। वाह, कोई ऐसी तालीम नहीं। लोग कहते हैं शरीयत मुश्किल है, मूसा की तालीम भी वो बड़ी मुश्किल है। मूसा की तालीम में गुनाह करो गुनाह है, गुनाह करो खून दो कफारा है। यीशु की तालीम में गुनाह सोचने पर गुनाह है, क्योंकि हर गुनाह सोच से पैदा होता है। उसने गुनाह को नस्ल इंसानियत में से निकाल दिया। जो गुनाह आदम और हवा की सोच में आया था, उसने सोच को मेरे और आपकी जिंदगी में से रद्द कर दिया। उसने सोच को मेरे और आपकी जिंदगी में से, नस्लों में से खत्म कर दिया, क्योंकि अब मैं और आप सोचने पे भी गुनाहगार होने लग जाते हैं, करने से नहीं। वाह, कैसी शरीयत है, कैसी तालीम है। गुनाह करो नहीं, गुनाह है। अगर में गुनाह हुआ था, सोचा नहीं था, मगर आज अगर मैं और आप सोचते हैं, अगर मैं सोचता हूं अपनी बहन के लिए बुरा करूं, तो बज़ाहिर मैं वो गुनाह कर चुका हूं। अगर मैं सोचूं कि मैं इस भाई को इसकी जगह से हटा के अपने भाई को खड़ा करूं, तो मैं गुनाह कर चुका हूं। अगर मैं सोचूं कि यहाँ पे कितना भी बड़ा किसी का बच्चा खत्म के तौर पे नजर आता हो, मगर मैंने अपने ही बेटे को यहाँ पे खड़ा करना है, तो मैं कर नहीं रहा, मैं कर चुका हूं। क्योंकि करने में टाइम लगता है, जिसमें बोला वक्त नहीं है, तो खत्म नहीं है। God has cleared your mind. God has set you free. Why? To live in freedom. And the freedom is only in Christ, Lord Jesus. यीशु सिर्फ आपको आजाद करता है। मैं या दुनिया को कोई खादिम आपको आजाद नहीं कर सकता। आजादी सिर्फ उसके नाम में है। हम सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। यीशु आपको आजाद करता है। यीशु आपको न बांधता था, न बांधता है, न कभी बांधेगा। उसने नस्ल इंसानियत को आजाद मर्जी पैदा किया, आजाद मर्जी रखा और आजाद मर्जी रखेगा। मगर वो कहता है अब इसका मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। आज मैं और आप उसका मुकाबला करना चाहते हैं, अदन की तरह, आदम और हवा की तरह अपना गुनाह किसी और पे डालना चाहते हैं। जब मुकाबला करने की बात है तो अपनी गलतियों का इकरार करने की बात है, अपनी गलतियों की माफी मांगने की बात है, अपनी खताओं की माफी मांगने की बात है। अपनी सोचों में जो गुनाह मैं और आप रख के बैठे हैं, सिर्फ आप नहीं, मैं भी उसके अंदर शामिल हूं। सब मैं और आप उस गुनाह को अपनी सोच में से निकालेंगे। खुदा का रेवलेशन कभी नहीं आ सकता। मैं जिस दिन से बनाऊंगा हमारे पास में आज एक बाइबल पढ़ी है, यहाँ पे आ मेरी अम्मी के पास पढ़े तो अम्मी के पास जाएंगे तो और बात नहीं होता, खत्म होता, सोचता मैं प्लीज क्या करना है, बूटी जब मैं आया नहीं लिखा तो है नहीं, प्लीज कहां से करूंगा। जब आपके ज़हन में वो ना होगा तो कलाम कहां से आएगा। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जिंदगी में कमी है, वो आपकी जिंदगी में कमी नहीं है, वो आपकी सोच में कमी है। इसलिए उसने सोच में से गुनाह को खत्म किया। मायूसी गुनाह है, नाउमीदी गुनाह है, ईमान में कमी गुनाह है, खुदा की जात पे शक करना गुनाह है। वो खुदा
जो एक कौम के लिए आसमान को खोल सकता और उस पे से अनाज को नाजिल कर सकता है, वो एक कौम थी। आज जो यहां पे बैठे हैं वो कौम नहीं है, वो उसके बेटे और बेटियां हैं। वो आम कबीला नहीं, वो शाही काहिनों का कबीला है, एक बरगजीदा कौम है जो बदले के लहू से रिडीम हुई है, खुल के बाद साफ हुई है। अगर उस कौम के लिए आसमान खुल सकता है और रिज़्क़ उतर सकता है, तो मेरे और आपके लिए क्या हो सकता है? क्यों उसको खत्म किया? क्योंकि मुझे और आपको छोटा नहीं देखता, ना वो छोटा बनाता है, ना वो छोटा रखना चाहता है। छोटे बेटे को चुन के मिस्र का बादशाह बनाने की कुदरत रखता है। छोटे बेटे को चुन के इस्राएल का बादशाह बना देता है। तो मैं और आप समझते हैं हम छोटे हैं, मगर जब मसीह मुझ में है और मसीह आप में है तो दुनिया की हर ताकत से हम ऊपर हैं, दुनिया की हर कुव्वत से हम उठाते हैं, दुनिया की हर तासीर मुझसे और आपसे डरती है, जहन्नम की हर लालच मुझे और आपको जानती है कि इन पे खून है, वो आम खून नहीं, वो कलवरी पे बर्रे का खून जो जमीन पे गिरा, वो लहू इनके ऊपर है, उस लहू की धारा इन पे बहती है, वो लहू इनकी हिफाजत करता है और उस लहू में आज भी कुदरत है, वो जिंदगियां बदलता है। उस लहू में आज भी जिंदगी है और उस लहू के वसीले आज भी जिंदगी मिलती है, जिंदगी मिलती रही है और जिंदगी मिलती रहेगी। मैं और आप क्या सोचते हैं? मैं और आप क्या खुदा को जानते हैं? क्या मैं और आप उस जगह पे जो मनुसलवा उतर रहा था उसको महज एक कहानी समझते हैं? मैंने उस दिन लगाया कि खादिम खड़ा हुआ, उसने सूरज को हुक्म किया जब तक जंग नहीं खत्म होगी वो नहीं गिरेगा। मगर बजाय सूरज तो घूमता है ही नहीं। उस खादिम ने इस जमीन को रोक दिया, जमीन को सख्त कर दिया, इस जमीन को जाम कर दिया, इस जमीन को फ्रीज कर दिया कि जब तक मैं अपना काम नहीं कर सकता तब तक तुम यहां पे रहोगे। जहां पे अक्स गिर रहा है, जहां मैं खड़ा हूं और जहां पे अक्स गिर रहा है, जब तक मैं काम नहीं करता, वापसी में आता या जब दोबारा आऊंगा, यहां पे गिरना चाहिए, यहां से नाखून जितना भी गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझ में एक खुदा बसता है, मेरे साथ एक खुदा है, उसका नाम एलोहीम है, उसका नाम रफ़ा है, उसका नाम यावे, यावे, the one who is by himself, जो अपने में ही सब कुछ है। मगर आज जो मेरे और आप में है, वो ना राफा के नाम से बुलाया जाता है, ना एलोहीम के नाम से, वो उन सब नामों से ऊपर नाम रखता है, उसका नाम उन सब नामों से ऊपर है। उसके नाम में अबलीस डरता है, उसके नाम से बदरूहें निकलती हैं, उसके नाम से बीमारियां जाती हैं, उसके नाम से रोग खत्म होते हैं, उसके नाम से अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते, बहरे सुनते और मुर्दा जिंदा होते हैं, और वो नाम यीशु नाम है। जो मेरे और आपके साथ है, जो मेरे और आपके अंदर है, वो यीशु है, वो यीशु है, वो यीशु है जो मेरे और आपका